अभी मैं शेयर करता हूँ। ओके, हाँ साहब देखिए, कुड यू सी इट? अभी दिखाई दिया? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। एक मिनट रुकिए, मैं अभी करता हूँ। ओके, अभी दिखाई दिया? नहीं सर। यस यस सर। सर। हाँ देखिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। Grading academic performance of students. This is today's topic, and topic is in fact not new. ये कुछ नया नहीं है, and we have been talking about for so many years. And even after a long time of discussion and experimentation, the system has not been implemented in most of the universities and institutions. You know, अभी भी बहुत सारी जगह इसे implement नहीं किया गया है, although बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं. Even when 10 plus 2 plus Good morning, sir. was implemented in the 1970s, that time also we were talking about it. Grading system लागू होगा, grading होगा, ये हम बात करते रहे. But even now, बहुत सारे institutions हैं जिनमें इसको implement नहीं किया गया. But as we discussed yesterday, that for implementation of choice-based grading credit system, implementation of grading system is a prerequisite. Grading करना जरूरी होगा, तभी हम CBCS को implement कर सकते हैं, and it's only then we can calculate semester GPA and cumulative GPA. तो ये चीज हम कल बात करते रहे, इससे काफी दिन तक हम लोग बात करते रहे इसके बारे में. So these are the points that we will be discussing in this presentation. Weaknesses of the traditional numerical marking system which is being used for assessing student answer books. एक तो हम इसकी बात करेंगे ब्रीफ में. हालांकि सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्किंग बिहेवियर है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाई इट इज नॉट वेरी यूजफुल इन सर्टेन थिंग्स, बट इवन देन वी विल टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ. And then need for an alternative approach in this regard and shifting to letter grades or symbols. इसकी जरूरत क्यों है, इसकी भी थोड़ी बात करेंगे. And then basic statistical logic underlying the use of letter grades to replace the traditional numerical mark. ये बहुत important point है. Statistical logic क्या है? What is the logic underlying this? इसको थोड़ा सा हम डिटेल में इसकी बात करेंगे. And then different methods of assigning grades. ग्रेड देने के कई मेथड हो सकते हैं, उन सब की भी हम बात करेंगे. And then at the end we'll talk about its limitation. इसकी अपनी limitations भी हैं, क्योंकि हर चीज की कितनी अच्छी हो, कुछ न कुछ उसकी लिमिटेशन होती है. ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या है? We have been following essay type examination for a long time, which requires the students to write long answers to questions in terms of written communication. बहुत लंबा 4-5 पेज, 6 पेज, 7 पेज का आंसर लिखना पड़ता है. Essay type examination, we have a set of questions, sometimes 10 questions, and then we ask the student to attempt any 5. Sometimes this is 8 or 7, and again ask the student to attempt 5 questions, and like this. But answer is always in terms of written communication, written language, which runs into several pages. बहुत सारे pages में आंसर लिखा जाता है.
And then it's evaluated by an expert in the field. जो expert होते हैं वो उसको evaluate करते हैं. They read it carefully and exercise their judgment to assess its quality, and then award mark out of the maximum marks prescribed. This is the way we have been doing. इस तरह हम लोग इस चीज को करते रहे. Moreover, at the same time, we have been continuously criticizing it. दोनों बातें हैं, हम इसको करते भी रहे, चलाते भी रहे बहुत दिन से, और हम ये भी कहते रहे कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है. It's highly unreliable. ये विश्वसनीय नहीं है. It's also invalid because there are many things which we don't intend to assess, but it assesses. Like, for example, the quality of handwriting. Handwriting खूबसूरत हो तो एकदम impression पड़ता है एग्जामिनर पर कि भाई बहुत अच्छा है, और उसी से कुछ 1-2% मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है. And then vocabulary, what words are chosen to respond, the quality of words, कौन से words आप इस्तेमाल करते हो, that makes a difference. And then speed of writing, कितना लिखा, ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. एक ने 2 पेज में आंसर दिया, एक ने 5 पेज में आंसर दिया, and that makes a difference. उसका भी कुछ फर्क पड़ता है. So these are certain things which are not intended to be evaluated, but they are there, and these things reduce its validity and therefore make the system invalid. और हम इसको कहते हैं subjectivity. एक और नया वेरिएबल है subjectivity. That means examiner's own opinion about the answer. देखिए, आंसर के बारे में उसकी अपनी ओपिनियन क्या है, how well he agrees or disagrees with the response of the examinee. जिसने लिखा है उससे किस हद तक वो एग्री करता है, किस हद तक एग्री नहीं करता. ये सब्जेक्टिविटी है, अपनी ओपिनियन, तो ये भी असर डालती है. तो ये सारी चीजें हैं. हम इसकी these are the weaknesses of the traditional examination, and we know them, and even then we have been practicing this for a long time. And the reason being that there are certain abilities which can be evaluated only by essay exams. इसकी अपनी खासियत भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम essay examination से ही टेस्ट कर सकते हैं, objective examination या और उससे टेस्ट नहीं कर सकते. So that's why it has been continuing for a long time. इसको हम काफी लंबे समय से यूज भी करते रहे हैं. ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की है. And then on the basis knowing, we know that the examination being practiced is not valid, is not reliable even then we decide the student's future on the basis of the performance on such tests. यानी students का future भी हम तय करते हैं इन्हीं से कि भाई and we give them marks in terms of percentages and then place them into different categories. Fail, then first, third division, second division, first division, and then honor or distinction. Like this, we have certain categories under which a student's name is placed according to his performance level. तो ये सब हम करते रहे ट्रेडिशनली. तो डिविजन्स भी देते हैं उसी के बेसिस पर, यानी सब चीज उसके बेसिस पर हम लोग करते रहे. So these are the practices. And while marking, we follow a 101 point scale. Marks are awarded from 0 to 100 most of the times in terms of percentage. 0% भी हो सकता है और 100% तक भी जा सकता है. So this is the scale of marking which is widely used. And at the same time, it is rejected by the experts as one of the poorest ways to express test performance. कहते हैं सबसे poorest way है ये, इसका कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. All this. तो इन सारी चीजों को देखते हुए, keeping in view all these things, we think that
some alternatives should be thought of. हम कहते हैं कुछ इसका ऑल्टरनेटिव आना चाहिए. तो अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ते हैं. ग्रेडिंग का थ्योरी क्या है? You know, whenever this is also a kind of measurement. When you assign grade or assign numerical marks, it's measurement of performance. And any measurement score, even if it's of length, अगर हम लेंथ भी मेजर करें किसी आयरन रॉड की, तो if you use the same meter scale again and again, every time reading may not be the same. Sometimes, it's a little more than what it was earlier. Sometimes it is less than what it was earlier. तो इसका मतलब ये है कि ट्रू लेंथ क्या है इसका पता नहीं है. True measurement is a hypothetical concept. Practically, whatever measurement we get, it always has two components. One is true component, which is true length or true score or true ability, whatever. And then there is a error component also. Error होता है. देखिए measurement में हमेशा error होता है. Sometimes due to the personal variables of the person which uses the instrument, and sometimes due to external reasons. But there is always some error. Sometimes that error is negative, and sometimes it is positive. It is negative when we under measure. Actual जो true score है या true length है, उससे कम अगर आता है तो हम कहते हैं there is an error and which is negative. Sometimes we over measure, and this is very common. You must have experienced some weighing machines. They over measure. आदमी का जो एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा 1-2% ज्यादा रीडिंग देती है. There are some other instruments which gives smaller reading than the actual true reading. तो ये चीजें हैं. तो दो चीजें हैं यहाँ पर. There is one hypothetical true score which is not known, and then there is an obtained score which is achieved or which is obtained by observation or by measurement process. तो ये दो स्कोर, एक तो हाइपोथेटिकल स्कोर होता है, एक ऑब्टेन्ड स्कोर होता है. उन दोनों में डिफरेंस है. जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर. उसको हम एरर कहते हैं. सो एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन measurement which is observed by any means and the hypothetical true score which is not known. इसको हम जानते नहीं है, वो ट्रू उसके बीच में डिफरेंस होता है. These errors can also be of two types. दो तरह की errors हो सकती हैं. There are random errors and systematic errors. दो तरह की errors है, उसको समझना पड़ेगा. Measurement में जो errors होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं. Systematic errors are those which are on one side, always positive or always negative. जैसा कि अभी बात कर रहे थे ना, कोई वेइंग मशीन हो और उसमें कोई डिफेक्ट हो और वो सबका वेट 1% ज्यादा देती हो, दैट इज ए सिस्टमेटिक एरर. जो कि एक साइड में है, वी नो इट दैट इट विल ओवर मेजर और इट विल अंडर मेजर. हम जानते हैं. दैट मीन्स द सिस्टमेटिक एरर्स आर प्रेडिक्टेबल. बता सकते हैं किधर होगा. बट देन देयर आर रैंडम एरर्स आल्सो व्हिच आर अनप्रेडिक्टेबल. रैंडम एरर्स भी होती हैं जिनको हम कह नहीं सकते क्या होगा, किधर होगा. एंड दीज आर ड्यू टू सो मेनी रीजंस. रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं which are unknown, पता नहीं क्यों. एंड टोटल एरर इज द सम ऑफ दीज टू. सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स को जोड़ दें, दैट इज द टोटल एरर इन ए पर्टिकुलर मेथड. तो ये है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन.
So true and error scores, each measurement has two components. अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेजरमेंट हम लेते हैं, चाहे वो मार्किंग एक मार्क्स ही क्यों ना हो, है ना, 20 आउट ऑफ 20 हम 11 मार्क्स देते हैं, it's not true score. It's either more than what it should be or it's less than what it should be. So each measurement, each observed score has two components, true component and error component. X is equal to T plus E. इस तरह हम लिख सकते हैं इसको स्टैटिस्टिकली. एरर ये हम बता चुके कि सिस्टमेटिक हो सकती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड में हो सकती है. एंड रैंडम एरर्स cancel themselves and sum is 0. देखिए ये एक बात है, because random errors are not predictable, they are not one sided, they are sometimes negative, sometimes positive. And if you take large number of observations with the same instrument, the systematic errors will cancel if you add the score. अगर आप ऐड करें ऐड करें तो जो रैंडम एरर्स है वो कैंसिल हो जाती है, बिकॉज some errors are negative, some are positive. If you add them, they cancel. So in large number of observations, mean of observed score equals true score. हम ये मान लेते हैं. If there is no systematic error, देखिए अगर systematic error नहीं है, in that case, and if you take large number of observations, that means if you measure the same thing with the same instrument so many times, बार measure करें, of course every time observation will be different, and if you find their mean, that will be the best best estimate of the true score. वो जो true score होगा उसका सबसे अच्छा estimate क्या है? Take large number of observations and find their mean. I mean, that is the best. But this process does not eliminate the effect of systematic errors. If they are there, अगर systematic error है तो वो रहेगी. अगर हम ये assume करें कि systematic error नहीं है, instrument ठीक है, instrument में कोई खराबी नहीं है, in that case, the mean of a large number of observed scores can be taken as the best estimate of true measurement. So these are some of the assumptions underlying measurement theory. Now we come to a concept. Standard error of marking. ये concept है. Every observed score is a sum of true score and error. ये हम बात कर चुके हैं. हर स्कोर में दो चीजें होती हैं, true and error. Now, marking standard of an evaluator is defined by mean and standard deviation of marks awarded by him. इसको समझिए. If we give a set of 500 answer books to one examiner and find out the mean and standard deviation of marks awarded by him. Okay. Then we give the same set of script to another examiner. Then again find mean and SD. Then we give it to the third examiner and then mean and SD and so on. If we give the same set of answer book to evaluate to several examiners, say 10 evaluators, there will be 10 means and 10 standard deviation because their marking standards are different. So we can safely say that the mean and standard deviation of scores awarded by a particular evaluator or examiner can be taken as a marking standard of that exam. किसी भी एग्जामिनर का जो मार्किंग स्टैंडर्ड है वो मीन और एसडी से पहचाना जाता है. देखिए अब देखिए मीन क्या बताता है. इफ एन एग्जामिनर इज स्ट्रिक्ट एग्जामिनर, अगर कोई स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा? मीन स्कोर awarded by him will be smaller
देन ए लीनियंट एग्जाम। एग्जामिनर लीनियंट होगा तो मीन ज्यादा होगा, क्योंकि वो he tends to award more marks and therefore mean will be larger. और अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, he tends to award less marks and mean will be less. एक बात तो ये हुई कि एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है, ये मीन बताता है, मीन्स को। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ मार्क्स अवार्डेड बाय द, कितना स्प्रेड करता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करते, है ना, 40 से कम किसी को नहीं देते और 60 से ज्यादा किसी को नहीं देते। यू नो, they award marks within a narrow range, and in that case standard deviation will be smaller, कम होगा, SD कम होगा। There are others examiners who award marks in such a way that their spread of marks is larger, यानी spread काफी दूर में है, यानी वो 5-6 भी दे देते हैं और ऊपर जाके 80-85 भी देते हैं, स्प्रेड बड़ा है उनका, ज्यादा है। In that case S will be larger, standard deviation जो है वो ज्यादा। And therefore these two measures, mean and SD, indicate the marking standard of an examiner. ये हम मानते हैं, ये चीज हमको देखनी है। And secondly, distribution of marks awarded by an examiner on a set of scripts. By many examiners, the single script is normal and its standard deviation is standard error of mark. देखिए ये बात समझिए। Distribution of marks awarded by an examiner on a set of script. एक कापियों का एक सेट है, उसमें जो अवार्ड दिए हैं एक एग्जामिनर ने उस पर, और by many examiners on a single script. ये बात समझिए, एक ही स्क्रिप्ट, एक ही आंसर बुक को बहुत सारे एग्जामिनर्स इवेल्युएट करें, then there will be a distribution of marks, or a set of scripts is examined by so many examiners, then again there will be a set of marks. Distribution of awards every time will be normal if the number of script is large. कम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि 3-4 ही 10-20 ही, नंबर अच्छा होना चाहिए तब ये नॉर्मल होगा, इट विल टेंड टू बी नॉर्मल। एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द distribution of marks awarded by an examiner to a set of scores or by so many examiners to a single score is a standard error of marking. उसको standard error of marking कहते हैं। It's a concept. You know, standard deviation of awards is a standard error of marking. ये हम एक concept है जो बाद में थोड़ा सा उसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम सब्जेक्टिविटी और लैक ऑफ रिलायबिलिटी ये क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा समझें। सब्जेक्टिविटी is a measure of chance variation indicating subjectivity or lack of reliability. It chance variation है, you know, variation by chance, because true score for a particular script is the same. जो ट्रू स्कोर होगा तो वही होगा और वो हाइपोथेटिकल होगा। and if different examiners award different marks, it will be a you know distribution of marks, एक distribution होगा, and that distribution is a measure of subjectivity, उसको हम subjectivity कहते हैं। you know, अगर एक ही आंसर बुक को 100 लोगों से इवेल्युएट कराया जाए, देखिए इस तरह समझिए, एक ही स्क्रिप्ट 100 लोग एग्जामिन करें, that means there will be 100 scores, and because true score will be only one, उसका एक ही true score तो एक ही होगा, इसलिए जो भी स्प्रेड है that is a measure of subjectivity, वो subjectivity बताता है।
that variation is due to the personal opinion of examiners, you see, or personal variables of the examiner, and therefore subjectivity. So subjectivity is nothing but a chance variation due to personal variable associated with the evaluator. इसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं. अब देखिए आगे एक चीज और, लास्ट थर्ड पॉइंट में देखिए, ए सिंगल इवेल्युएटर मार्किंग ए सिंगल स्क्रिप्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. एक तो ये सिचुएशन है, एक ही इवेल्युएटर और एक ही स्क्रिप्ट, वो उसको बार बार इवेल्युएट करे और अवार्ड दे विदाउट नोइंग हिज प्रीवियस स्कोर. देखिए हाइपोथेटिकल वो है, प्रैक्टिकली ये नहीं होगा कि अगर आप एक मार्क करें एक स्क्रिप्ट को और दोबारा करें तो वो आप, ऐसा नहीं है कि आप पुराना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है. Assume that a single evaluator evaluates a single script a large number of times. तो ये situation है. दूसरा situation, the other situation is a large number of evaluators evaluating a single script only once. देखिए स्क्रिप्ट एक ही है, ठीक है, उसको एक ही इवेल्युएटर बार बार इवेल्युएट करे. सर स्क्रिप्ट मींस क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट? आंसर शीट. नहीं, आंसर शीट की बात. हाँ, स्क्रिप्ट मींस आंसर बुक, ठीक कर रहे हैं आप. एक ही आंसर बुक है, आंसर बुक है ना. ऐसे टेस्ट की बात आप करें, जो भी करें, सिंगल स्क्रिप्ट मींस अकेली आंसर बुक. दो तरीके से इवेल्युएट की जाए. नंबर वन, एक ही इवेल्युएटर बार बार उसको इवेल्युएट करे, अपने अवार्ड दे, यू नो, एंड एज्यूमिंग दैट ही डजंट रिमेंबर हिज प्रीवियस कोर्स. पहले उसने क्या दिया वो उसको याद नहीं है. दूसरी सिचुएशन ये है कि वही स्क्रिप्ट बहुत सारे इवेल्युएटर इवेल्युएट करें, ईच वन इवेल्युएट्स ओनली वंस. तो अब देखिए, एक एग्जामिनर ने 100 बार देखा उसी को, और 100 एग्जामिनर ने एक बार देखा हर एक ने. इन ईच केस देयर विल बी 100 स्कोर्स. दोनों केसेस में 100 स्कोर्स होंगे, ओके, एंड दे विल फॉर्म ए डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा. एंड दीज टू सिचुएशंस आर assumed टू बी स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट. दोनों बराबर है. And in both the cases, it is safely assumed that mean and SD will be the same. Mean और SD एक ही होगा. शर्त यह है कि स्कोर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम नहीं होने चाहिए, लार्ज होना चाहिए. यू नो, मैं 100 की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि 100 ही हो. इट कैन बी 500 इवेल्युएटर्स इवेल्युएट, यू नो, सिंगल स्क्रिप्ट, और वन इवेल्युएटर इवेल्युएट्स 500 टाइम्स. बात एक ही है. So if this sample is large or the number of observations is large, the two situations are statistically equivalent. Means every time in both the situations, mean and SD of distribution will be the same. एक ही होगा. तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं. लॉजिक बिहाइंड ग्रेडिंग. देखिए अब हम असली चीज पर आते हैं. रिसर्च स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग इन इंडिया इज नियरली 10%. थोड़ा सा यहाँ से इंटरप्शन करेंगे. सर आई एम स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट. कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और 80% मार्क्स लाया, तो 6 मंथ बाद फिर वही क्वेश्चन दे दिया जाए तो मार्क्स में वेरिएशन आ जाता है. हाँ मैंने आएगा, बिल्कुल आएगा. ये चूंकि हम लोग को भूलने की आदत है, हम चूंकि उससे प्रिपेयर थे एग्जाम के लिए और 80% लाया, 6 मंथ बाद वो चेंज कर, चूंकि हम सारी चीज को भूल गए, अभी अपडेट नहीं है. एक्चुअली ये तब होगा जब, तो वो सर ट्रू स्कोर के बाद प्लस माइनस जो वेरिएशन है वही आ जाएगा वेरिएशन.
यस, टाइम गैप इज लार्ज, तब तो भूल जाएगा आदमी। इसको बोलते अगर हैं टाइम टेस्ट गैप रिटेस्ट नहीं है मेथड। तब जब अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो वो नहीं भूलेगा, तो उसे याद रहेगा। या तो एज्यूम ये किया जाता है इसमें कि टाइम गैप है, यू नो देयर इज अ टाइम गैप एंड देयरफॉर ही या फॉरगेट टाइम द लैग। प्रीवियस। एनीवे, तो ये है। देखिए रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हमारे यहाँ इंडिया में एवरेज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग 10% है। दैट मीन्स इफ an examiner evaluates a single script 100 times, and if you find a standard deviation, it will be 10 if the maximum marks is 100. अगर maximum marks 100 है तो standard deviation जो है वो 10 हुआ, which is called standard error of marking. तो ये रिसर्च से साबित हुआ, लोगों ने किया है काम, और तब उन्होंने पाया कि आमतौर पर 10% है। एंड सर इट इट इज कैन बी नोन एज मोर टी देन, स्कोर। इट इज नोन एज टी स्कोर। ना टी स्कोर नहीं है ये, इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अवार्ड्स, तभी हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग कहते हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइंड इट। इस तरह हमने पीछे पीछे स्लाइड में इसको डिफाइन किया। 10% का वेरिएशन होगा, दैट मीन्स इसका मतलब सिंपली है कि एक एग्जामिनर 40 मार्क्स देता है तो दूसरा 30 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है। ये इसका मतलब बात समझना। 10% का क्योंकि वेरिएशन हो सकता है, एंड दैट इज बाय चांस। ये वेरिएशन भी बाय चांस है। एक आदमी, एक एग्जामिनर 50 मार्क्स देता है तो दूसरा उसी स्क्रिप्ट पर 60 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है। इट कैन बी 10% लेस, इट कैन बी 10% मोर। तो ये है वाइड वेरिएशन, एंड इन सर्टेन सब्जेक्ट्स इट कैन बी मोर देन 10%। कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा भी हो सकता है और कुछ में 10 से कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस, मैथमेटिक्स, इनमें थोड़ा वेरिएशन कम होगा if different examiners evaluate, and you know ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में बहुत ज्यादा लिखना होता है, उसमें थोड़ा वेरिएशन ज्यादा होगा, एंड मीन वेरिएशन इज 10%। तो इसको कहते हैं कि इतना है। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया, देखिए दिस मीन दैट इफ ए स्टूडेंट obtains 45 मार्क्स ऑन एन essay test, his true score may be anywhere in the interval 35 to 55। ये बताता है, यानी 45 को एक एग्जामिनर जो मार्क्स दिए, ये उसका ट्रू स्कोर नहीं है, ये ऑब्टेन्ड स्कोर है, यू नो। लेकिन ट्रू स्कोर कहां होगा? दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 35 एंड 55 बिकॉज देयर इज 10% एरर। 10% एरर है। तो अगर हम दूसरे को एग्जामिनर दे 35 55 के बीच कहीं देगा, फिर हम तीसरे एग्जामिनर को दे तो वो भी 35 और 55 के बीच कहीं भी देगा, एनीवेयर। ये चीज है। एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन चांस वेरिएशन, क्योंकि ये वेरिएशन बाय चांस है, ऑल स्कोर इन द इंटरवल 35 to 55 इंडिकेट प्रैक्टिकली द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेरिएशन बाय चांस है, नॉट रियल। ये रियल नहीं है, it's a chance variation. Then we can safely assume that the interval between 35 to 55 indicates the same level of performance. Level of performance वही है। देखिए obtained score was 45, किसी एक इवेल्युएटर ने मार्क्स दिए 45, और एरर हो सकता है 35 से 55 तक। कितना रेंज? कहीं भी दूसरा एग्जामिनर कहीं भी मार्क्स दे सकता है, कितने भी मार्क्स दे सकता है। एंड दैट मीन्स, एंड सिंस दिस वेरिएशन इज बाय चांस, द इंटरवल 35 to 55 indicates the same level of performance. 35 हो या 55 हो, परफॉर्मेंस इज एट द सेम लेवल। अगर दोबारा वही एग्जामिनर दे तो हो सकता है उसको 55 मिल जाए या 35 मिल, एंड इवन एग्जामिनर इज द सेम, आदमी वही है, इवेल्युएटर वही हो, तो भी ये पॉसिबिलिटी है। तो इस बीच में जो ये जो इंटरवल है, इसको मान सकते हैं कि दिस इंडिकेट्स सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑन एवरी पॉइंट ऑन इट। 35 से लेके 55 तक कोई भी स्कोर हो,
36, 37, 38 कुछ भी, तो उसका लेवल एक ही है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज द सेम। इसकी अब क्या एप्लीकेशन होगी अब हम देखते हैं। अब हम देखिए, अब ग्रेड को अब हम डिफाइन करेंगे। थोड़ा उसकी थ्योरी हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब हम देख ग्रेड को डिफाइन करते हैं। अभी हमने देखा कि 35 to 55 indicates the same level of performance because of chance variation. If a range of scores indicates the same level of performance at all points within it, it may be represented by a single symbol. This is the essential logic underlying the concept of grading. जब हम ये मानते हैं कि 35 to 55 जो वेरिएशन है ये बाय चांस है, और इसको हम ये मान सकते हैं कि दिस रेंज इंडिकेट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, देन वी कैन इंडिकेट इट, वी कैन शो इट बाय अ सिंगल सिंबल। एक सिंबल से शो कर सकते हैं, इट मे बी ए बी सी एनीथिंग। ये आइडिया है ग्रेड, हम इसलिए करते हैं ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग की बात हम यूं ही कर रहे हैं because it is hard to discriminate between 60 and 59, but 59 is a second division and 60 is first. Why? Because there is a chance variation. तो आइडिया ये है कि वो हम नहीं कर सकते। तो जितने रेंज में हम ये माने इतने रेंज में परफॉर्मेंस लेवल सेम है, तो उसको हम क्यों ना एक सिंगल स्कोर से इंडिकेट करें या सिंगल सिंबल से इंडिकेट करें। इट मे बी ए, इट मे बी 1 और एनी अदर सिंबल, और ऐसा हम करते रहे। जस्ट सी 60 and above we award first division. Why? It's a symbol, because we assume that 60 and above performance level is the same. हम ये मानते हैं, तभी तो फर्स्ट डिवीजन सबको देते हैं। 62 वालों को भी फर्स्ट डिवीजन, 70 वालों को भी फर्स्ट डिवीजन। You see, that means we have assumed that performance level within that range is the same. तो ये आइडिया है। अब हम ग्रेड को डिफाइन करते हैं। A grade is a symbol associated with a range of scores which is supposed to represent more or less the same level of performance, providing for random errors of marking. ये हम, this is how we can define a grade. ग्रेड को हम डिफाइन कर सकते हैं, this is how. It's a symbol which is associated with a range of scores representing the same level of performance nearly, and it provides for random errors of marking. क्योंकि वेरिएशन ये चांस है, चांस वेरिएशन है, इसलिए हम उसको, this is how we can define a grade. अब हम क्या करते हैं? What do we do when we assign grade? जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो करते एक्चुअली what we actually do while assigning grades, an attempt is made to identify relatively uniform score intervals. Just see, we try to identify relatively uniform score intervals on the measurement scale in a hierarchical order from lowest, very poor, to highest, superior performance. देखिए ग्रेड को हमने कैसे डिफाइन किया कि within a certain range performance level is the same. Okay, then on the entire scale of measurement 0 to 100, you see, we try to identify such intervals, उस तरह के intervals हम identify करते हैं within which performance level is the same. See, ये है within the lowest interval performance level is the same. Maybe it is from 0 to 10 or 0 to 15. This is one lowest interval. Then the next is 15 to 25 or say 30.
then next is 32, 45 or something like that. So on the entire scale of measurement, score intervals are identified in such a way that within a particular range, performance level is the same, but lower than the next higher range, next higher interval. उससे ऊपर का जो इंटरवल है उससे कम है उसमें, लेकिन within that interval is the same, and it is higher performance than the lower interval. उससे नीचे जो होगा उससे higher performance. That means grade C, so grade B indicates higher performance than grade C, which is the lower interval. Similarly, and grade A indicates a higher performance than grade B, which is a higher interval. Like this. तो हम ये करते हैं, entire scale, measurement scale from 0 to 100% is divided into intervals. उनको हम intervals में divide करते हैं. Scores within an interval indicate relatively same level of performance, but lower than the next higher interval and higher than the next lower interval. ये इसका है. And then to each such interval, a symbol or a letter is assigned to indicate corresponding level of performance. Once we have identified these intervals in a hierarchical order, then we assign symbols to them, A, B, C, D. हम कहते हैं this interval indicates A grade, this interval indicates B grade, this interval C grade, like this. And the sizes of interval will depend on standard error of measurement. Intervals का size कितना होगा ये standard error of measurement पर depend करेगा, test की reliability पर depend करेगा, and how objectively the test is marked उस पर depend करेगा. तो जरूरी नहीं कि same size हो. It will depend on marking behavior of teacher. तो ये हमने ये this is the concept of grading. देखिए अब हम ग्रेडिंग की टेक्निक्स पर आते हैं कि ग्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. अलग अलग मेथड्स हैं, वो क्या है उस पर हम आते हैं. देयर आर टू मेजर अप्रोचेस ऑफ असाइनिंग ग्रेड्स. दो अप्रोचेस हैं. वन इज डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड द अदर इज स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग. दो तरीके हैं. देयर आर टू अप्रोचेस for assigning grades. One is direct grading and the other is statistical. Statistical grading is also called grading on the curve. इसलिए कि because statistical grading assumes a distribution of marks. हम एक distribution assume करते हैं जिसको कि हम curve में डाल सकते हैं, and that's why इसको कहते हैं grading on the curve का नाम भी रखा. So these are the two approaches. Now in direct grading system, the evaluator may assign grades directly, like A, B, C, D, E, directly after reading these grades, without assigning numerical score. Numerical score nahi dene hote. And this is the method which is followed by Indira Gandhi National Open University. आप लोगों के पास IGNOU की आंसर स्क्रिप्ट आती होंगी और आप देखते होंगे कि वो लोग सीधा ग्रेड देने की बात करते हैं. वो कहते हैं रीड ईच क्वेश्चन, और आमतौर पे IGNOU की बुक्स में आंसर बुक्स में 4 क्वेश्चंस होते हैं. 4 questions mostly. Now examiners asked to read each question separately and then assign grade out of A, B, C, D and E to each question. हर क्वेश्चन पर अपना वो ग्रेड दे A, B, C, D, E. By reading the answer and exercising best of his judgment. अपना जजमेंट एक्सरसाइज करें. न्यूमेरिकल मार्क्स इसमें नहीं देने होते, सीधा ग्रेड. एंड सच ग्रेड्स में बी यूज्ड. सच ग्रेड्स आर. आवाज नहीं आनी चाहिए भाई.
अच्छा सिस्टम है इग्नू का। Please mute yourself. Please mute. Please mute yourself. भाई आवाज आ रही। देखिए मैं ये बता रहा था कि इग्नो ये मेथड यूज करता है। आई डोंट नो इफ देयर इज सम चेंज नाउ, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ सर, ये तो तो मेरे बहुत पास अच्छा आया करता था, तो अब नहीं आता। लेकिन दिस वाज द प्रोसेस। सच ग्रेड्स में बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग जीपीए। फिर वो कहते हैं कि इसी से जीपीए कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट ग्रेडिंग इस्तेमाल किया जाता है। And they have weighing system. They have a weight of 5 for A grade, 4 for B grade, 3 for C grade, 2 for D grade, and 1 for E grade. So this is how सीमेंट वालों को practices चलो direct ये दूसरी जगह। विवेक चंद जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए यार, आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है प्लीज। विवेक चंद जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। I think it's fine now. So this is the way direct grading में ये चीज होती है। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग में क्या होता है ये देखिए। इन स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग the evaluator awards numerical marks on every question and then converts them into grades by using certain statistical or arithmetical procedures. इसमें ये होता है, पहले न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं and then these numerical marks are converted into grades by using certain arithmetical operations और statistical operations। इसको करके हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ग्रेडिंग में न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिकल ग्रेडिंग है इसमें पहले न्यूमेरिकल मार्क्स दिए जाते हैं और फिर उनको ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। एंड बिफोर कन्वर्जन टू ग्रेड ऑल न्यूमेरिकल स्कोर्स आर चेंज्ड टू ए कॉमन स्केल। ये इंपॉर्टेंट है। सी different subjects and even different evaluators in the same subject have different marking scale. हम देखते हैं बच्चे के 60 मार्क्स अगर इंग्लिश में आ जाए तो पेरेंट्स खुश होते हैं, हाँ इंग्लिश ठीक है सो गुड। और 60 मार्क्स अगर मैथ्स में आ जाए तो उनका मुंह लटके, अरे ये तो कुछ है। यानी 60 स्कोर वही है, 60 है, लेकिन मैथ्स में वो कुछ नहीं माना जाता, कहते हैं मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। और इंग्लिश में वही अच्छा माना जाता। क्यों? बिकॉज स्केल इज डिफरेंट। हम मानते हैं अलग स्केल है, इंग्लिश में जो स्कोरिंग है वो अलग स्केल है, मैथमेटिक्स का स्केलिंग अलग स्केल। सो बिफोर यू यूज एनी अरिथमेटिकल प्रोसेस और अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन स्कोर, दे हैव टू बी चेंज टू ए कॉमन स्केल। क्योंकि डायरेक्ट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट ऐड फीट टू स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर्स, नहीं कर सकते। देखिए दो, if there are two plots of land, one measures its area in terms of meters, square meters, the other measures in terms of square feet. आप डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? either convert square feet to square meter or convert square meter to square feet and then add. कॉमन स्केल में करना होगा सब, because there are so many papers, so many courses, paper 1, paper 2, paper 3 like this, and each paper is based on a different kind of subject matter, and these are also evaluated by different examiners who have different marking standards, अलग-अलग है। तो सब, that means all have been evaluated on different scales. All marks are on different scales, and therefore these cannot be added directly. All have to be converted to a common scale. पहले सबको common scale पे करना पड़ेगा। इसके methods हैं, सबको common scale पे convert करने के there are techniques, statistical techniques by which all sets of scores can be reduced to a common scale. बल्कि आपने Z score तो सुना ही होगा बहुत commonly, वो ऐसा ही एक स्केल है, लेकिन उसमें डेसिमल और माइनस होता है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। बट देयर आर अदर स्केल्स आल्सो, दूसरे भी तरीके हैं। नाउ आफ्टर ग्रेडिंग ईच क्वेश्चन,
हर क्वेश्चन को ग्रेडिंग करते हैं, देन जीपीए इज कैलकुलेटेड। इसके बाद जीपीए कैलकुलेट करने का मेथड वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। Yesterday, we had a detailed discussion about it. और वो GPA is nothing but a weighted average of grade points. ये है, उसका weighted average होता है। All right. डायरेक्ट ग्रेडिंग की ऑलमोस्ट हम पूरा उसका कर चुके हैं। The examiners are required to group। अब एक तरीका है, उसमें यह है कि आप you read it and award grade. The other way is divide the answer books in 5 categories, A, B, C, D, and E, on the basis of quality, and then award grades to each group. ऐसे ये एक तरीका हो सकता है। और इसमें एक चीज और मानी जाती है कि भाई कहा जाता है कि ये बहुत डिपेंडेबल है और रिलायबल भी है, क्योंकि रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी बिकॉज वी assume that awards in a certain range, which may be sometimes very wide, indicate the same level of performance. तो जब हम ये मान लेते हैं कि एक रेंज के अंदर जो भी स्कोर है वो सभी एक ही लेवल इंडिकेट करते हैं, वो ज्यादा रिलायबल होगा ही। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें रिलायबिलिटी होगी। एनीवे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। These are useful. Direct grading is more useful for teacher-made tests, and it's not much useful when greater precision is required. जहां बहुत ज्यादा accuracy की जरूरत पड़ती है, when you need greater discrimination among examinees, तब ये काम नहीं करता। So, all right, इसमें कुछ there's nothing we should be discussed in detail. अब हम आते हैं ग्रेडिंग ऑन द कर्व, दूसरा तरीका। देखिए, एक हमने डायरेक्ट ग्रेडिंग को डिस्कस किया, इसमें क्या है, एग्जामिनर्स रीड ईच क्वेश्चंस एंड अवार्ड ग्रेड्स डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर जजमेंट। उसमें ये करते हैं एंड देन कैलकुलेट जीपीए बाय द प्रोसीजर डिसाइडेड बाय द एग्जामिनिंग बॉडी। तो ये तो उसमें हुआ। अब हम आते हैं कि ग्रेडिंग ऑन द कर्व, एंड in this process, the examiners first award numerical scores. पहले numericals marks दिए जाते हैं सबसे पहले, and then these are converted into letter grades. Okay. Before converting, these are reduced to common scale. इसकी बात भी हम कर चुके हैं, and then that composite score. After reducing on a common scale, the scores on different papers can be combined. तब उनको combine किया जा सकता है by addition or by some other linear combination. जो भी तरीका हो, उससे हम उसको combine कर सकते हैं. Once you have the composite score for all the papers, you can award grades by 2 methods. इसके भी 2 तरीके। Grading on the curve also has 2 approaches. One is called absolute grading, and the other is relative grading. इसके भी 2 तरीके हैं, absolute grading and relative grading. इन दोनों को हम आगे अब डिस्कस करते हैं। Absolute grading क्या है? When for each grade, A, B, C, D, E, whatever the grades, performance level cut score is fixed in advance. अगर हम पहले से ये तय कर लें कि ग्रेड देने के लिए कट स्कोर्स क्या होंगे, जैसे हम डिवीजन में करते हैं ना, 60 हमने मान रखा कट स्कोर, 60 एंड अबव फर्स्ट डिवीजन, और ये हमने एडवांस में तय कर लिया, पहले से तय कर। So this is a kind of absolute grading. ये एक absolute grading है जब हम पहले से ये डिसाइड कर लें कि इस कट स्कोर से नीचे हम ई ग्रेड दे देंगे, and between this and this we'll award
B ग्रेड और C ग्रेड, अगर हम ये पहले से डिसाइड कर लें एडवांस में, तो इट इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। इसको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग बिकॉज criterion for awarding grade is decided in advance and each score is referred to that criterion. इसलिए इसका नाम है criterion reference grading. So absolute grading and criterion reference grading is the same. एक ही को कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, absolute grading में कट स्कोर्स आर डिसाइडेड इन एडवांस। हम पहले से तय कर लें 85% एंड अबव ए ग्रेड, 75 to 85 बी ग्रेड, लाइक दिस। इफ वी डिसाइड इन एडवांस तो हम कहते हैं दिस इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जो डायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम है, डायरेक्ट ग्रेड दिया जाता है, तो उसमें फाइनल ग्रेड कैसे देते हैं फिर? नहीं, जीपीए निकाल कर फिर करते हैं उसको करके। मैंने बताया ना कि दोनों में पहले कंपोजिट स्कोर निकालते हैं और जब सारे पेपर्स कंबाइन हो जाएंगे तो उस पर जो ग्रेड आएगा दैट्स फाइनल। ओके सर, थैंक यू। आई गो बैक टू दैट। ये देखिए नीचे लिखा है कंपोजिट स्कोर्स आर कन्वर्टेड इनटू लेटर ग्रेड्स। ये है फाइनल। क्या है, पहले हम क्या न्यूमेरिकल मार्क्स देते हैं, फिर उनको कॉमन स्केल पर कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी कंबाइन देम। कॉम्बिनेशन पे जो आएगा वो फाइनल ग्रेड होगा। ये है सर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ऑलराइट, इसको हाँ, ये हम बात कर क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग, इसकी हम बात कर चुके और अब हम आगे चलते हैं। ये इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज नॉर्मल, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की। इफ द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड ग्रेड इंटरवल्स आर इक्वल। देखिए नॉर्मल कर्व अगर आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है एंड ऑल ग्रेड इंटरवल्स आर इक्वल, then each grade covers a distance of 1.2 standard deviation units because normal curve extends from -3 standard deviation to +3 standard deviation units. ये आप जानते हो। Total distance under the normal curve is 6 standard deviation. And if you divide it by 5, if there are 5 grades, then each grade level will cover 1.2 standard deviation units. 6 divided by 5 will be 1.2 ST. So हर ग्रेड जो है, हर ग्रेड लेवल 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स को कवर करेगा। एंड द थ्योरी ऑफ नॉर्मल distribution indicates that in such case grade C will cover 40% examinees just in the middle 40% examinees will be covered by C grade. B and D, any one grade above and one grade below, will cover 23% each, dono mein. And the first and the last will cover 7% each. Because the curve is symmetrical. Normal curve दोनों साइड में एक जैसा होता है, इस तरह से ये होगा। If grades are 7 in number, then distance will be 0.86 SDs. इतना। तो ये एक अलग अरिथमेटिकल प्रॉब्लम है। अब आप आइए साहब, हाँ ये देखिए, दिस इज ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ ए स्कूल। ये किसी स्कूल का ही हमने लिया है और ये अलीगढ़ के ही एक स्कूल का है। आई डोंट नो वेदर नाउ दैट स्कूल हैज मेड सम चेंजेस, हो सकता है आपको चेंज कर दी हो, बहुत पुराना है ये। एंड द प्रैक्टिस वाज दैट स्कूल अवार्डेड
7 ग्रेड, उनका जो स्केल था वो 7 पॉइंट स्केल था, A+, A, B, C, D, E and F, and they described them by calling excellent, very good, good, satisfactory, average, weak and very poor, इस तरह से. And their score ranges were 85 and above. A+, 75 to 84, A grade, 60 to 74, B grade, 50 to 59, C, 40 to 49, D, 33 to 39, E, and below 33, F. That was the practice which they followed. And that means they had decided in advance as to what will be the cut scores for awarding grades. ये पहले से उन्होंने तय कर लिया. And therefore, it is an example of criterion referenced grading. या absolute grading आप कहिए, उसकी ये एग्जाम्पल है. अब देखिए, इसमें हम बताते हैं क्या क्या, what are the variables and what are the factors that influence absolute grading. किन किन चीजों का फर्क पड़ेगा. एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हम पहले से तय करते हैं कट स्कोर पहले से डिसाइडेड होते हैं. ओके, once it is there, once the cut scores have been decided, so what are the factors which will influence the grading system? Absolute grading is affected by marking standard. एग्जामिनर का जो मार्किंग स्टैंडर्ड है उससे उसका फर्क पड़ेगा. कैसे? Awards of a strict examiner result in a positively skewed distribution, and larger number is awarded lower grades. इसको समझिए. अगर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ज्यादा लोगों के लोअर मार्क्स आएंगे, कम लोगों के हायर मार्क्स, ऐसा होगा. That means large number of students will be placed in lower grades. क्योंकि हमने पहले से कट स्कोर क्योंकि पहले से डिसाइड किए हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा लोगों के लोअर ग्रेड आएंगे. और if the examiner is lenient, बिल्कुल उल्टा होगा. In that case, if he is lenient, then the resulting distribution would be negatively skewed. That means more students will get higher marks. ज्यादा लोगों के हायर मार्क्स आ जाएंगे और इसलिए हायर ग्रेड भी आएगा. तो मार्किंग स्टैंडर्ड जो है वो इफेक्ट डालता है. वो मीन भी असर डालता है और एसपी स्टैंडर्ड डेविएशन भी असर डालता है. अगर कोई आदमी, कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करता अपने मार्क्स, दैट मीन मोस्ट ऑफ द ग्रेड्स विल बी कंसंट्रेटेड एट द मिडल. बी और सी आएंगे सबके, क्योंकि स्प्रेड नहीं है. तो ये चीज होगी. तो मार्किंग स्टैंडर्ड ऑफ एन इवैल्यूएटर विल इन्फ्लुएंस द ग्रेड्स. जो ग्रेडिंग पैटर्न होगा उसको ये इन्फ्लुएंस करेगा. वेरिएशन से भी होगा. देखिए, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बता चुका मैं. इफ अवार्ड्स आर स्प्रेड इन ए नैरो रेंज, इफ वेरिएशन इज स्मॉल, ग्रेड्स कंसंट्रेट ऑन फ्यूअर कैटेगरी, BCD, बस. किसी का A नहीं आएगा, किसी का E भी नहीं आएगा, क्योंकि मार्क्स को बहुत लोअर वेरिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा. एंड इफ द वेरिएशन इज हाई, ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वाइडर रेंज, तब रेंज ज्यादा होगा. कुछ का A भी आएगा, कुछ का E भी आएगा. तो ये दोनों ही चीजें, mean and SD of marking scale of an examiner influences grading pattern in the absolute grading. चलिए साहब, अब हम relative grading पर आते हैं. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, there is a question. Sir, you showed us an example of a school grading system. In which it was shown that for 85% plus A plus grading will be given. And sir, at the same time, you said that if the examiner is lenient,
then the people with higher grade will be more. Yes. And one more thing was said, sir, about the distribution curve, that normal distribution curve, in which you said that in a 7 scale or in a 5 scale, it will differ, like for around 7% will be put in the top bracket and in the bottom bracket, in the bottom grading. So, sir, if the examiner is lenient, then obviously more than 7% people student will be scoring more than 85%, but then they will be downgraded to A grade. Is this mean that? देखिए, मैंने ये कहा था, if वो जो सिचुएशन बता रहे ना आप कि 7% will be covered in the lowest grade, that assumes normal distribution. Okay? लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नहीं होता. जब एग्जामिनर लीनियंट होगा, देखिए, when the examiner is lenient, distribution will not be normal, वो skewed हो जाएगा. तो वो चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. That was only for normal distribution. ये बात ध्यान रखिए. तो ग्रेडिंग कैसा, ग्रेडिंग नॉर्मल नहीं भी हो सकती, मतलब इसका ये मतलब नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा ही नहीं. लेकिन वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने माना, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा. इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल देन दैट विल हैपन, अदरवाइज नॉट. फिर तो बदल जाएगा पूरा सिस्टम, है ना. लीनियंट एग्जामिनर होगा तो ज्यादा लोगों का ए ग्रेड आ जाएगा, बी ग्रेड भी ज्यादा लोगों का आएगा. और अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होगा तो ए ग्रेड हो सकता है किसी का ना आए, भले आप एडवांस में तय कर लें. सर कई बार ऐसा भी तो होता है कि ग्रेड कैंडिडेट को देख करके ग्रेड तय किया जाता है. दैट्स अ डिफरेंट इशू, है ना. सर मेरा एक सवाल है. हेलो. हाँ बताइए सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और आपको एडमिशन की प्रक्रिया को भी देखते हैं, और उसमें जो बच्चे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे 80% 90% लेकर आते हैं, लेकिन उस विषय के बारे में उनकी जो समझ होती है वो 80% लायक होती नहीं है. तो हमें लगता है कि जो ग्रेडिंग में जो एक्सीलेंट और गुड, वेरी गुड जो आपको लिखा रहता है, वो जो स्टूडेंट होता है ना वेरी गुड होता है, ना गुड होता है, ना एक्सीलेंट होता है. तो उसके नॉलेज में और ये ग्रेडिंग पॉइंट में जो डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, उसका हम क्या करेंगे? देखिए, वो उस बच्चे का कसूर नहीं है, वो तो हमारे सिस्टम की कमजोरी है. वी शुड इम्प्रूव आवर सिस्टम को ऐसा करें कि ये चीजें ना हो, है ना. उसके तरीके होता क्या है कि जो एग्जामिनेशन का टाइपोलॉजी बहुत बदली है. जब पूरी तरह से ऐसे एग्जाम होता मुझे लगता है सर, मतलब मुझे लगता है कि भारत का जो सबसे खराब चीज जो है शिक्षा में, वो मूल्यांकन पद्धति है. मूल्यांकन पद्धति इतना खराब है कि मैंने कॉपी चेक करते हुए भी देखा है लोगों को कि मतलब पढ़ते नहीं है और देख लिए कि क्या है, मार्क नंबर धनाधन दे दिए, और फिर उसके बाद बहुत बार मजबूरी होती है कि कुछ नहीं लिखा है तो उसको कहता हूँ पास करो. यदि पास करने की भी जिम्मेदारी आपको एग्जामिनर के जिम्मे आ जाती है. उसमें तो बहुत सारी पद्धति पे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिना मूल्यांकन पद्धति के बिना सुधार किए मुझे नहीं लगता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी रूप में वो ठीक है परफॉर्म कर सकती है. देखिए, ये तो जो सिस्टम है ना, ये तो ये एज्यूम कर जो भी आपकी पद्धति है उसको सही मान के ये ग्रेडिंग सिस्टम है. लेकिन वही अगर कमजोर है तो ग्रेडिंग सिस्टम में वो सारी कमजोरी आ जाएगी, है ना. अगर देखिए, न्यूमेरिकल मार्किंग ही हम ठीक नहीं कर रहे, उसमें जो कमजोरियां हैं वो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में अपने आप चली आएगी. उसी को ठीक करना है पहले, वो ठीक. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सर मैं देखा हूं कि एमएससी का बच्चा, एमएससी के बच्चे को 0.4 का वर्गमूल नहीं आता है, जबकि ये 8 क्लास का सवाल होता है. तो मतलब ऐसे बच्चे मतलब एमएससी तक कैसे आ जाते हैं? ये सब देखिए, ये तो पूरे सिस्टम की कमजोरी है ना. इसमें तो सर सिस्टम कहती है कि आपको फेल नहीं करनी है. दिस रिक्वायर्स अ मेजर चेंज. गवर्नमेंट कहती है फेल नहीं करनी, ताकि क्या किया जाए. तो फिर जब तो फिर सारा इन चीजों का क्या मतलब है, जब हम सिस्टम को ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं, या कुछ हमारी जो यूनिवर्सिटी है एजुकेशन पॉलिसी जो है.
ये जो चीज है उस सिस्टम के लिए है जो एग्जिस्ट करता है। अब आप बदल दीजिए उसको तो तब बदलेगा। ये तो हम उसके लिए मान रहे हैं कि जो सिस्टम हमारा है। सर यदि मतलब मैंने सर आपको 200 कॉपी चेक किए जिसमें मैंने 40-45 लड़के फेल हुए और फिर जो भी नंबर पाए, क्योंकि मैंने अच्छे से चेक किया, कॉपी पढ़ पढ़ के चेक किया, 200 कॉपी चेक किया, तो अब उसमें क्या है कि हो सकता है कि मुझे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अगली बार बुलाया ही ना जाए, या मैं जाऊं तो मुझे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि मतलब आप मतलब बच्चों को फेल कर रहे हैं। तो एक शिक्षक क्या करे इसमें, आप हमको ये बताइए। बिल्कुल बता ना, वो तो आप इस बिल्कुल सिस्टम से एक शिक्षक कैसे एक दिन में अगर 200 कॉपी चेक करेंगे तो यही हाल होगा सर। भाई पूरे सिस्टम में आप रेडिकल चेंज की बात कर रहे हैं। एक दिन में नहीं भाई, 3 भाई में अरे यार, एक दिन में नहीं, 3-4 दिन में कॉपी चेक हुई 200। मैंने टोटल बताया कि 200 कॉपी मैंने चेक किए और उसमें से 40-45 बच्चे फेल हुए, और जो भी पाए कोई 35, कोई 40, कोई 42 ऐसे करके पाए, क्योंकि जिस हिसाब से लिखा रहेगा उसी हिसाब से मतलब नंबर लेगा। जो मूल्यांकन पद्धति तो यही कहती है। वो चीज तो जब आप मार्क्स देते हैं वहां खत्म हो जाती है, ग्रेडिंग तो उसके बाद शुरू होती है ना, तो उसको ठीक करिए। तो मार्क्स सबसे जरूरी तो ये है, मार्क्स के आधार पे ही तो ग्रेडिंग होगा। सबसे जरूरी ये है कि क्वालिटी मार्क्स के आधार पे ही तो ग्रेडिंग होगा। देखिए पहले तो आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सुधारिए। यस क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, यू नो, उसमें बहुत जबरदस्त सुधार की। तो उस तरह तो रेडिकल वो चीज अलग बेसिक है, लेकिन जो कुछ है उसके बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो ग्रेडिंग कैसे होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। उसमें रेडिकल चेंज करिए तो ये भी बदलेगा। Chauhan sir, अगर excuse me, बदलेंगे तो I ये भी have a बदलेगा। question. I have a question. Thank you, sir, for your nice presentation. This is the first time I could understand the real meaning of grading system. Why do we accept the grading system? I have a question. Actually, my college is affiliated to the Raja Mahant Pratap State University, Aligarh, and since last 2 years, we are taking exam on OMR sheet, like MCQ type questions. And in that case, if we apply grading, we cannot apply grading system, because grading system is like a applicable to the subjective answers like essay type and written answers. But in that case, MCQ is itself is a very objective, sir. It is a computerized sheet, MCQ type, and the candidate is getting exact number. There is no variation, no mean or standard deviation. नहीं, वहां तो ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है ना। Yes, in spite of that, they are giving grading system. So I think this is not right thing to लेकिन give. उसके मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम से ही तो उनका फिर मार्कशीट तैयार होगा। Yes, क्योंकि एमसीक्यू से क्योंकि अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके मार्कशीट में जो ग्रेडिंग सिस्टम है। देखिए ग्रेडिंग, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ग्रेडिंग तो तब से शुरू होगी जब आपने मार्क्स दे दिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे ओएमआर सीट से हो, जैसे भी हो। देखिए ओएमआर सीट से भी तो आप मार्क्स ही देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वंस यू हैव मार्क्स इन योर हैंड, उसके बाद देन ग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, वहां से शुरू होती है। तो ओएमआर सीट से करें, मैनुअली करें, कैसे ही करें, वंस यू हैव मार्क्स, रॉ मार्क्स, these can be statistically converted into grades. लेकिन सर इसमें वेरिएशन तो नहीं आ रहा है ना, इसमें Yes, एग्जैक्ट आ रहा है। This is my point. This is because the student is getting exact number. There is no variation, because the subjectivity of the evaluator or teacher is null. No, there is variation among the students. देखिए, Yes, हाँ, yeah, there must be. There must है ना, be. Yeah, तो उसकी ग्रेडिंग होगी। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, तो एक स्टूडेंट है उसका तो वही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सेम स्कोर होगा, है ना, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट्स के तो स्कोर अलग होंगे ना, ग्रेडिंग उसके लिए होगी। एनीवे, अब हम रिलेटिव की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम शॉर्ट पड़ जाए और ये खत्म ना हो। देखिए, when examiner are evaluated by relative positions in the test, एक चीज हम समझिए, जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा का परफॉर्मेंस क्या है, हाउ अदर्स हैव परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर हमने तय कर दिया कि 60% पे फर्स्ट डिवीजन देंगे, तो जिस बच्चे के 60 आ जाएंगे तो उसको फर्स्ट डिवीजन हम दे देंगे, भले ही दूसरों का जो भी स्कोर हो, दूसरों ने जैसा भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग है, इसमें पूरे ग्रुप ने कैसा किया उसका भी असर पड़ता है। इसको थोड़ा देखिए।
When examinees are evaluated by relative positions in the tested group, grading is said to be relative or norm referenced. इसको norm reference कहते हैं. डायरेक्ट ग्रेडिंग को हमने कहा था क्राइटेरियन रेफरेंस. ओके, ये है नॉर्म रेफरेंस. हियर ग्रेडिंग इज इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स. देखिए एग्जांपल में बताऊं, जैसे रैंकिंग होती है ना, रैंक 1 रैंक 2, किसका क्या रैंक आएगा क्लास में, इस पे डिपेंड करता है कि दूसरों ने कैसा किया. ये बात समझ रहे हैं ना. अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसके 33% ही मार्क्स आए लेकिन बाकी सबके उससे भी कम है, तो फिर वो रैंक 1 हो जाएगा. ये बात समझ में आई ना आपके? Yes, sir. It is relative, sir. Yes. Yeah. बहुत थोड़े मार्क्स हैं उसके लेकिन बाकी सबके उससे कम है, तो रैंक 1. और ऑन द अदर हैंड, इवन इफ ही हैज 80% है उसका लेकिन बाकी सबके उससे भी ऊपर है, तो वो लोएस्ट हो जाए, उसका रैंक जो नीचे है. सो दैट इज द मेन आइडिया. ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग है, दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, रैंकिंग ऑफ ए पर्सन. तो इससे ये होता है. तो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि ओवरऑल ग्रुप कैसा है ना. ये फर्स्ट रैंक ये हम कर चुके हैं, दैट वी डन. देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बिगिंस विद फिक्सिंग द इन एडवांस द कट स्कोर्स. ये हम बात कर चुके हैं. कट स्कोर एडवांस में फिक्स कर लेते हैं तो उससे शुरू होती है. एंड इट एंड्स विद फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ एग्जामिनीज टू बी प्लेस्ड इन ईच ग्रेड. देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, हम कट स्कोर पहले से तय कर लेते हैं और जिसका जितना मार्क्स हो, जिसके मार्क्स होते हैं उसको देखते हैं, उसको ग्रेड में प्लेस करते हैं. This is what we do. According to his scores, we place him in the grade. Relative grading में क्या होता है? It begins with fixing in advance the proportion or number of examinees to be placed in each grade. इसमें पहले से ये तय करना होता है कि हमें कितने लोगों को कौन सा ग्रेड देना है. It decides that we'll award A grade only to the best 5%. इस तरह तय होता है. We'll award B grade to the next 15%. We'll award C grade to the next 15% and so on. इसमें ये पहले से तय होता है कि कितने लोगों को कौन सा ग्रेड हमको देना और उसके बाद हम उनको प्लेस करते थे. कट पॉइंट्स फिर अपने आप निकल आते हैं. You know, you don't have to decide cut points. Cut points are determined later. जरूरत भी नहीं उसकी होती है क्योंकि हमने परसेंटेज की टर्म में तय कर दिया. जो बेस्ट 5% है उनको A ग्रेड, खत्म. नेक्स्ट 15% उनको B ग्रेड हो गया. अब जैसा कि मैंने बताया कि ये इस पर डिपेंड करता है कि पूरा ग्रुप कैसा है. हाउ इज द ग्रुप, है ना. तो अब आगे इसी कमजोरियां क्या है ये भी अब आगे देखिए. इसकी वीकनेसेस भी है. स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन मे और मे नॉट बी नॉर्मल. यहां है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूरी नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्रुप. ये ग्रुप की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा. अब देखिए यहां क्या होगा. इफ वी डिसाइड दैट वी विल गिव A grade to best 5%, यानी बेस्ट 5% को हम A ग्रेड देंगे. और मान लीजिए टोटल ग्रुप बहुत अच्छा है, एवरीबडी डिजर्व A. मान लीजिए ग्रुप इतना अच्छा है कि हम वो हर एक A ग्रेड में आना चाहिए, हमको ऐसा लगता है. लेकिन क्योंकि हमने पहले से तय कर लिया कि 5% को ही देंगे, तो हम बहुत सारे डिजर्विंग लोगों को लोअर ग्रेड में धकेल देंगे. दिस इज द प्रॉब्लम विद इट. ये वीकनेस है इसकी. यानी क्वालिटी ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द ग्रेडिंग पैटर्न. क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो सबसे नीचे 5% है उनको हम E ग्रेड दे देंगे, पहले से तय कर.
इवन इफ दे ऑल डिजर्व ए और बी और समथिंग, उनको हम ई दे दें. सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द ग्रुप मेक्स अ डिफरेंस हियर. ये तय होता है. इफ ग्रुप टेस्टेड इज ऑफ पुअर क्वालिटी, देखिए ग्रुप अच्छा नहीं है, वी मस्ट अवॉर्ड हाई ग्रेड टू फिक्स नंबर. क्योंकि हमने तय कर लिया, क्योंकि हमने तय कर लिया बेस्ट 5% को हमको देना ही है ए ग्रेड. ग्रुप भले ही पुअर हो, nobody deserves A, even then we'll give A to the best 5%. टॉप रैंकर्स जो 5% होंगे उनको हम ए ग्रेड देंगे, भले ही कोई डिजर्व नहीं करता, इफ द ग्रुप इज पुअर. Same thing is true for a good group. So quality of groups influences the grading pattern in relative grading. इसमें ये इस पे असर डालता है. इसकी बात ये हमने कल भी देखा था. देखिए ये वही है, यूजीसी ने कहा, कल हमने बताया था कि ये दिस इज द पैटर्न विच विल बी फॉलोड. यहाँ क्या चीज है, देखिए ये ओ ए प्लस, ये कैसे आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशन. वो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, रिलेटिव ग्रेडिंग फॉलो करते हैं या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग फॉलो करते हैं या कोई और मेथड वो फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा. वंस दीज ग्रेड्स हैव बीन अवॉर्डेड, 9 point grade है ये, then grade point average can be calculated with the help of these grade points. ये यूजीसी का जो वो है उसको सर्कुलेट किया हुआ है. अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा. ग्रेडिंग की, अब देखिए ग्रेडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई फूड प्रूफ चीज नहीं है कि भाई इसको कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरे सिस्टम बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं. Because chances of misclassification increase with increased variability and decreased reliability of the test score. There is always a chance कि misclassification होगा. जिसको A grade मिलना चाहिए वो B में आ जाए, especially in the neighborhood of cut points. There is always a chance of misclassification. वो वैसे भी होता था, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें भी होता था कि बाई चांस 60 आ गया तो फर्स्ट ग्रेड हो गया और 59 आ गया तो सेकंड में आ गया, सेकंड ग्रेड में. एट द इन द विसिनिटी ऑफ कट पॉइंट्स देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफिकेशन. ये होगा. एंड हायर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग, मोर सच चांसेस आर देयर. जितनी एरर होगा उतना ये चांस ज्यादा है मिसक्लासिफिकेशन हो जाए. मोर ओवर, अब उसमें एक दूसरा इश्यू और है. ग्रेडिंग सिस्टम पुट्स पुअर स्टूडेंट्स टू एडवांटेज. जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको इसमें एडवांटेज मिलता है. कैसे? सपोज बी ग्रेड इज अवॉर्डेड फ्रॉम 45 to 59. 45 to 59 हम बी ग्रेड देना चाहते हैं, तब क्या होगा? 46 वाले को भी बी ग्रेड और 58 वाले को भी बी ग्रेड, जबकि there is a wide range between them. And the one scoring 59 is certainly better than the one scoring 46. ये बात अलग है कि हमने उसको चांस वेरिएशन मान लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन देम. उससे क्या होता है, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो फायदे में रहते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो नुकसान में रहते हैं. दोनों को मिला दिया जाता है. तो दैट्स ए प्रॉब्लम विद देम. ये इनके साथ ये इशू है. देन most selection and placement efforts where seats are limited, a combination of both the approaches is followed. देखिए इसमें क्या है, जहां भी सिलेक्शन की बात होती है तो हम दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं. क्राइटेरिया वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी और रिलेटिव ग्रेडिंग. कैसे? एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करते हैं कंपटीशन में कि जिसके 50% नहीं आएंगे उसको तो हम लेंगे ही नहीं. यानी जो 50% स्कोर नहीं करेगा उसको हम नहीं लेंगे. 50% मीन्स और भी कोई
स्कोर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन, वो दूसरा कोई डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल तय किया जाता है कि इससे कम वाले को तो हम लेंगे ही, एंड दिस इज एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट हो गया। एंड देन बियॉन्ड दैट वी प्रिपेयर ए मेरिट, एंड मेरिट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव, रैंकिंग पर बेस करती है, वहां रिलेटिव आ गया। तो मोस्टली सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एफर्ट्स, these are based on the combination of both the दोनों। तो ये इसका एक इश्यू है। और वैसे grading as such, A, B, C, D are not usable in making selections and placements. ये selection कर, अगर आपको grade, if you want to make a selection for a job or for admission to a faculty course, अगर किसी कोर्स के लिए करना चाहें तो वहां तो you want very finer discrimination। वहां आपको ये नहीं चाहिए कि बहुत बड़े रेंज में आप सेव कर देंगे, वो नहीं होगा। These are not usable. Suppose you have 10 seats and there are 50 A graders. How will you make a selection? तो उस केस में A ग्रेड से कम नहीं होगा। You have to have some other means. उसको कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीपीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप ग्रेड से जीपीए में ही आ रहे हो, न्यूमेरिकल में ही आ रहे हो, तो फिर ग्रेड देने का फायदा क्या? ये भी कहा जाता है इसका फायदा क्या जब अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल में ही आना। तो ये सब चीजें हैं, दीज आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस। ये मैं बता चुका कि दीज आर नॉट डायरेक्टली यूजेबल बाय सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट डिसीजंस, एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द competitive examination are conducted and awards are given in terms of percentile ranks. ज्यादातर percentile rank दिए जाते हैं, because these are finally discriminating process. ये जो percentile rank है ये discriminate करता है। बहुत जो फेमस एग्जाम ये जैसे है ना ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट, वो ऑल इंडिया टेस्ट एक होता है और उसमें एमटेक में एडमिशन होते हैं उसी के बेसिस पर, एंड ए स्टूडेंट इज गिवन ए परसेंटाइल रैंक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटाइल रैंक ही कैन सीक एडमिशन एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं भी हो जा सकता है। तो इस तरह से अपनी लिमिटेशंस इसकी है ना ग्रेडिंग सिस्टम की। और कुछ मान लीजिए कुछ फायदे भी इसके हैं कि इसमें फेल वगैरह आप किसी को नहीं कहते, यू कॉल देम ABCD। दिस हैज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि भाई आदमी किसी बच्चे को फेल कहो तो उसको अच्छा नहीं लगता, ये कहते हैं कि नहीं फेल नहीं कहो। Can we say the grading system is a old wine in new bottle? पर्सनली देखिए है क्या, दोनों अप्रोचेस हैं, अपनी अपनी एब्सोल्यूट और वो ये जो रिलेटिव है ना इसमें। बट फॉर whenever there is a selection from larger group for a smaller number of positions, you have to follow the relative approach। तब आपको मेरिट बनानी ही है। जब हम मेरिट बनाते हैं तो दैट्स ए रिलेटिव काइंड ऑफ असेसमेंट, तो वो आपको कहीं कहीं और जब हम उसकी बात करते हैं कि किसको पास करना है किसको फेल करना है, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस एब्सोल्यूट, बिकॉज इन दैट केस यू डिसाइड इसका स्कोर। जैसे आर्मी में होता है ना, आर्मी और पुलिस में होता है, हाइट तय कर देते हैं, इतनी हाइट होगी तो लिया जाएगा आदमी, नहीं तो नहीं लिया। एंड दैट इज एब्सोल्यूट असेसमेंट, वो एब्सोल्यूट है क्योंकि हाइट तय कर दिया, उससे ऊपर होगा तब लिया जाएगा, नीचे होगा तो नहीं लिया। और इस तरह से हर चीज को आप रिलेटिव कर सकते हो। वेट इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट का लेंथ इतना होना चाहिए, ये आर्मी में होता है रिक्रूटमेंट के लिए। तो वो सब रिलेटेड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, एब्सोल्यूट असेसमेंट। तो सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, कहीं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम यूज होता है, कहीं वो यूज होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये सारा इसका डिस्कशन है, एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट
slide. Okay. थैंक यू सर। Thank you, sir. 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 Thank you, Thank you, sir. And we needed a Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, please upload PPT Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, please Thank you, upload. sir. Sir, बस सका ऐसे ही आशीर्वाद सका ऐसे ही आशीर्वाद में रहे। जी सर। चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। वेरी Thank नाइस। you, sir. Thank you so much, sir. PDF ग्रेडिंग सिस्टम के बाद जब PPT में sir, very impressive for me. Thank you, sir. ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। Sir, in the thank you, FIP group. sir. सर ये कहना था मुझे कि स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम के बाद तो ग्रेडिंग सिस्टम होता नहीं है, तो फिर वहाँ पर तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को कॉम्पिटिटिव हाँ, वो लेवल सब पर। है, वो सब इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है ना।